Good morning, everyone. How are you all? Hope so that you all are fine at your house. So, today we are going to complete our chapter number 9 in textbook. I have already explained you most of this chapter, and now only the last topic of this chapter, which is the animals that give birth to the young ones, is remaining. So, let's complete this chapter today, and then we will start it in our revision worksheet. So when we talk about the animals which give birth to the young ones, it means that these animals do not lay egg. वो egg को lay नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? They give birth to the young ones. They reproduce by giving birth to the young ones that feed on their mother's milk. जो अपनी mother's milk पर feed होते हैं और जो young ones को birth देते हैं, they are known as an, क्या कहते हैं उन्हें? These are known as the animals which give birth to the young ones. Mammals are the example of such animals. ऐसे example का, अगर ऐसे animals का मैं आपको example दूँ, then mammals is the best example of it. Okay? Actually mammals have very well developed brains. उनके जो brains होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. कैसे होते हैं? डेवलप्ड होते हैं. मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. बहुत सारे मैमल्स के बॉडी में हेयर होता है. क्या होता है? दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ डॉग. ह्यूमन बींग्स, डॉग, cat, lion, elephant, deer, cow, buffalo, hippopotamus, zebra, giraffe, monkey and rabbit. ये जो है ये सारे के सारे मैमल्स हैं. whales and dolphins भी मैमल्स होते हैं, लेकिन वो कहाँ पाए जाते हैं? They are found in water. वो पानी के अंदर पाए जाते हैं. And but they do not have hairs on their body. उनके बॉडी में hairs नहीं होते हैं. क्या नहीं होते हैं? They do not have hairs on their body. Okay? Then comes most probably mammals live on the land. और अगर mammals land पर रहते हैं तो वो कहाँ से breathe करेंगे? They will breathe through the lungs. वो lungs से breathe करेंगे. Do you know how a whale or dolphin breathe? क्योंकि वो तो पानी के अंदर रहती है. So how they will breathe? They will breathe with the help of the lungs only. वो भी lungs की मदद से ही breathe करेंगे. How? They take air in through the blowholes. उनके पास blowholes होते हैं जो उनके head के ऊपर रहते हैं, which are at the top of their head. So they breathe through that blowholes. वो blowholes की मदद से breathe करते हैं और इसी वजह से वो बार बार पानी के ऊपर आते हैं for breathing purpose. Right? So they come on the surface of the water frequently for breathing. Okay, next comes animals look after their young ones. जैसे ही आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं ना, do your parents take care of yours? Yes, same way. जैसे ही पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, कौन ध्यान रखता है इन सबका? Yes, their parents also look after them. So let's understand that thing. Just as your parents look after us, all other mammals look after their babies. सारे mammals अपने बेबी का ध्यान रखते हैं. Most of them build houses to protect their babies. As your parents, जैसे कि आपके पेरेंट्स से आपका ध्यान रखा है, वैसे ही सारे जो मैमल्स होते हैं वो उनके बेबीज़ का ध्यान रखते हैं. क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं. यस, वेरी गुड. दे ऑल्सो हंट फॉर फूड. वो उन्हें खाना देने के लिए हंट भी करते हैं. क्या करते हैं? हंट करते हैं. राइट? मदर्स, उनकी जो मम्मी होती है वो अपने बेबीज़ को अपना खुद का दूध पिलाती है.
एंड दैट इज़ वाई दे बिकम्स हेल्दी। क्योंकि आप अगर हमारी बात कर लो तो हमारे बच्चे भी जब छोटे होते हैं, दैट व्हेन यू आर इफ़ यू सी अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसको भी मम्माज का मिल्क ही पिलाते हैं, बिकॉज इट इज़ द प्योरेस्ट मिल्क फॉर दैम। और मम्मी जो होती है वो उन्हें क्लीन रखती है, उन्हें वार्म रखती है। बर्ड्स भी अपने बेबीज़ का ध्यान रखते हैं, वो नेस्ट बनाते हैं, उन्हें वार्म रखते हैं। और जैसे कि चिक्स फ्लाई नहीं कर सकती है, तो क्या होता है, पेरेंट्स बर्ड्स जो होते हैं वो उनके लिए खाना ला कर देते हैं और उन्हें कोई भी डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट डू? दे प्रोटेक्ट देम। So here our chapter number 9 gets complete. Now we are going to start our chapter number 9 in worksheet. Okay, so please remove your revision sheet. First of all, today we will study about the important notes which are given it to us. Living things have the ability to reproduce. Living things के पास एक ability होती है reproduce करने की. The ability to produce more of their own kind. अपने ही kind की ज़्यादा produce करना, that is known as an reproduction. The habit of some animals. कुछ animals के habit होती है to sit on their eggs. टू केप दैट एग्स वार्म, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंक्यूबिनेशन। हम उसे इंक्यूबिनेशन कहते हैं। अ फ्रॉग लेज एग इन वाटर, फ्रॉग क्या करता है, वाटर में एग ले करता है और वो बहुत सारे एक साथ ले करता है इन अ लार्ज क्लस्टर्स, सो दैट इज नोन एज एन स्वैम्प्स। ए कंप्लीट चेंज फ्रॉम द यंग फॉर्म टू द एडल्ट फॉर्म, अगर एक छोटे से यंग फॉर्म से एक एडल्ट फॉर्म तक का जो चेंज होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? We call this change as a metamorphosis. Shedding the old skin is known as an molting. Old skin को shed करने को हम molting कहते हैं. Whales and dolphins also breathe through the lungs. Whales और dolphins जो होते हैं, जो कि एक mammals का part है, वो भी lungs से breathe करते हैं. They breathe through their lungs. Animals reproduce by either laying eggs or by giving birth to the young ones. All right. An egg has a shell called the egg shell. एग को प्रोटेक्ट करने के शेल को क्या कहते हैं, एग शेल. अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज एन एल्ब्यूमिन, और जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन के अंदर. अ बेबी बटरफ्लाई इज अ कैटरपिलर, अगर हम बेबी बटरफ्लाई की बात करते हैं तो वो एक कैटरपिलर है. देन इट बिकम्स अ प्यूपा, और उसके बाद वो क्या टर्न हो जाता है, इट टर्न्स इनटू दी बटरफ्लाई. आफ्टर दैट इट विल टर्न इनटू दी बटरफ्लाई. यस. देन कम्स द मैमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू दी यंग वंस. मैमल्स ऐसे एनिमल्स हैं कि जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं. ओके, सो हियर आवर इम्पोर्टेंट नोट्स गेट कंप्लीट. And now we are going to start our exercise. In exercise, the first question is write one word for the following. हमें क्या लिखना है? We have to write one word. So the first one is a white jelly-like substance. White jelly-like substance को हम क्या कहते हैं बेटा? Albumin. Very good. So after albumin, what is the question? This is the protective layer of the egg. Egg का protective layer कौन सा होता है? Egg shell. Very nice. It is the innermost part. सबसे अंदर का पार्ट क्या होता है egg का? Yolk, which is yellow in color. It is rich in protein. Protein में कौन rich होता है? Yolk. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय, बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय लेइंग एग्स. मोस्ट मैमल्स हैव ब्लैंक्स ऑन देयर बॉडीज. मोस्ट प्रोबेबली मैमल्स के बॉडी पर क्या होता है? दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर एग. अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं.
सो हियर अवर हाफ चैप्टर 9 इज़ बीन ओवर. अभी भी हमारे 2 क्वेश्चंस बाकी है चैप्टर 9 के जो हम लोग कल करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.